Hello everyone, I'm Anjali Sondhia and I've secured All India Rank 9 in UPSC Indian Forest Service 2024. And this was my about my journey, if I say. So this was my fourth attempt, but it's the first time I cleared prelims. So first time I wrote mains and subsequently cleared interview also. Uh, so earlier in the first attempt, I cleared GS, but sorry, I failed in GS and cleared CSAT. But subsequently, in second and third attempt, I failed CSAT. So 2023 especially was a very difficult year because at that year, in that year, I prepared very hard and scored also nicely in GS, but CSAT was the obstacle. So for this, I thought I was actually I almost gave up, but my mother said, "Okay, let's make it the last attempt. Try one more time." So I gave this last attempt from my side, though it's just fourth attempt. So I cleared the forest cutoff also. So I had the choice whether to give civil or forest, and I decided that this is the opportunity. I would be, I'll be very grateful if I get into a forest service. So I gave forest exam. Forest. I wrote forest means, and even though now I have attempts, but I will not give any more attempts. I don't want any other service. I'll be very, very grateful and honored to be part of Indian Forest Service. So this is from my side. Now starting about UPSC, uh, other strategy. So you can ask your questions also. Okay, so my optionals were geology and forestry. And in geology, I scored 284 this year, which is a very good score actually. I took a planet geology coaching after prelims. So starting from July to September, I prepared geology from Planet Geology course, and I read Apurva Dikshit sir's notes and watched the classes for Planet Geology. Now, thank you so much, everybody, for all the best wishes. Now, the learnings that I would say from my entire journey is that it was a long journey with continuous failures. Okay, not able to clear prelims for such a long time actually was very demotivating because I did not have anything to show. So somehow my parents, they kept faith in me. So I want to say that if you really wish to come to UPSC, it's a very different exam than other exams. So it has both aspects that it needs your hard work, of course, but there's sometimes luck is also there because 2023 was something where I gave everything and prepared my best, and yet I missed the cutoff. It like CSAT, I got 65. Okay, so if you come into the exam, be prepared to face such failures where even you don't know why you failed. Okay, so come into the exam and give everything that you have got, and that was the thing because earlier I think I can say that my preparation was not holistic because after failing in 2022 I should have given CSAT more time, so I gave it, but I left the number system part, and which should have been covered. Okay, if you have seen the 2023 paper, it had quite a good weightage of it. So cover the syllabus, cover every part very, very thoroughly, and each stage of UPSC, each stage of this exam, prelims, mains, interview, requires a certain different approach, and that approach has to be there. Okay, okay. So I can see that this means in 35 days what to do in these last days. So 35 days, okay. So this is almost you have exam in 35 days. So what I did before my mains, when I had last 1 month, uh, your entire focus is that you revise every part of your syllabus. Okay, you have to revise.
it happened that just before my mains, I also thought that what I was doing, I took a comprehensive course. I should have been very, very ready with everything, but I was not. So it's okay if even if now you're feeling that you might have missed some parts of syllabus or you don't know this or don't know that, it's fine. Okay, now you have to revise and you know it. Okay, you know which parts you know very well. Some parts that you need to cover and give whatever you have got. Okay, like start reading for so many hours that you just close your eyes and fall asleep. Okay, now you can't relent. Now a few things that define my whole UPSC journey, if I would say that you have to rationally judge yourself, okay, throughout your preparation. I've seen many people, like for the first time that I went to Delhi for UPSC interview. Earlier, I was never there. So, but I saw people, and many are there just for the sake of giving UPSC exam. Okay, they are not really prepared for the for prelims or for mains, and without being mains ready, if you go for prelims and if you clear prelims, what's the purpose actually? So don't give the exam for the sake of exam. If you really wished to be a part of the service and you're really investing this much time, so rationally judge yourself. Do know where you're lacking, uh, what parts you should be covering well. Okay, हाँ, कितना भी पढ़ो ऐसा लगता है कि आपका प्रिपेयर नहीं हो, ये तो बहुत कॉमन है। ये इनफैक्ट इवन इंटरव्यू से पहले भी व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू माय फैमिली, सो यही बोलती थी कि मैं अ, मतलब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था मैंने एंड आई रेड एवरीथिंग एंड येट आई वुड फील कि सब भूल चुकी हूँ। सो इट्स वेरी नॉर्मल अनलेस कि आप अपनी साइड से पढ़ रहे हो, ओके? डोंट डिसकंटिन्यू दैट एंड डोंट बी यू नो बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर प्रिपरेशन और भूलना एंड लगना कि नहीं याद हो रहा है, वो सब इट्स वेरी नॉर्मल, ओके? Okay. So somebody is saying that they would appear in 2027. Okay, it's 2 years. So it's very good that you have already covered prelims and main syllabus. That's commendable because it's usually not the case that you can cover your mains and prelims syllabus this early. So it's very nice actually, and you should keep revising. Okay, but revise now well, you give yourself some time to do other stuff also. Because if you have really completed your syllabus and you would complete your optional by 2026, then you can go slow. Otherwise, you will face the burnout. Okay, it's very common. So go slow. ओके, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और हाँ, हिंदी में बोलूँगी एक्चुअली हाँ, इट हैज़ टू बी बायलिंगुअल मैं भूल गई थी। और कुछ दिनों अगर पढ़ाई नहीं भी होती है इट्स इट्स वेरी फाइन। ओके, ऐसा कई बार होता है जहाँ ऐसा लगता है कि नहीं अब तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन यू अ फेज़ कम्स जहाँ आपको वाक़ई में ऐसा लगता है कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो या पढ़ाई हो नहीं पा रही है। इट्स फाइन जस्ट बी कंसिस्टेंट कुछ दिन आपकी बहुत अच्छी होती है, कुछ दिन अच्छी नहीं होती है, बट अपनी तरफ से ऑनेस्टी बरकरार रखिए। ओके। Also, now if we come to some specific things, like do not blindly follow others, okay? फॉर एग्जाम्पल जब मैंने ज़्यादातर क्योंकि खुद से पढ़ाई करी है, घर पे पढ़ाई करी है, तो मेरे पास एक पीयर ग्रुप नहीं था, ओके? एंड स्टिल बट जब जैसे कि दिल्ली होता है या कोई भी अदर प्लेस है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी और बहुत स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स थी। एक लक्ष्मीकांत जो मैंने आई थिंक 2016 में ली थी, जब मैंने प्रिपरेशन खुद से स्टार्ट करी थी, वही मेरे पास 2025 तक भी थी, जबकि उसका अपडेटेड एडिशन्स आ चुके थे या बहुत सारे सोर्सेज़ हो सकते थे। बट मेरी जो 2024 का प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया है, वो भी उसी लक्ष्मीकांत से किया है। तो डू नॉट यू नो फॉलो टू मेनी सोर्सेज़ और उसमें जो अपडेशन चाहिए होता है वो आपके उन्हीं नोट्स में करते रहिएगा। बहुत सारे बल्क रिसोर्स इकट्ठा मत कीजिए, ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं जो निमोनिक्स बहुत सारे बना लेते हैं। कुछ के लिए वर्क करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि किसी ने स्ट्रैटेजी आपको बताई है, आपने यूट्यूब वीडियो देखा, तो आप भी वही करेंगे। मुझे निमोनिक्स ही भूल जाती थी, तो वो किसके लिए है वो तो अलग ही बात है कि वो तो भूलना ही है। तो मैंने बस 2 चीज़ों के लिए निमोनिक्स याद करे थे। एक फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल पार्क्स के लिए जो शिवन सर का साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट मॉड्यूल था कंबाइंड, आई थिंक वो 23 में लिया था मैंने। तो उससे उसके लिए सारे याद करे थे और एक रिवर्स का सीक्वेंस आपको याद होगा जो हमारे 24 में एक आया था यूपी की जो हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ को अरेंज करना था।
उसके लिए मेरे वो एटलस में लिखा हुआ था और मुझे वैसा का वैसा याद रहा और मैं उसको सॉल्व कर पाई थी, ठीक है? तो बहुत सारे मत याद कीजिए, आप बहुत स्पेसिफ़िक रहिए, आपको कैसे चीज़ें याद रहती है। एक और होता है कि मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि हम बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ या कोचिंग्स अगर आपने कोई ले रखी है, तो वीडियोज़ देखते रहते हैं और ये सोचते हैं कि चलो सब हम कवर कर रहे हैं। वीडियोज़ देखने से आपको फ़ैमिलियरिटी होगी टॉपिक के साथ, आपको वो टॉपिक याद करने के लिए खुद टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ओके? मैंने कोई टेलीग्राम चैनल एक्चुअली अभी बनाया नहीं है। अ, और अभी ऐसा कोई मेरा वो नहीं है कि मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊँगी। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि मुझसे ज़्यादा अच्छी-सी स्ट्रैटेजीज़ इस साल के मेरे बैचमेट्स की हैं। वो लोग एक्टिवली हेल्प भी कर रहे हैं और कुछ हैं टॉपर्स जिन्होंने टेलीग्राम चैनल्स बनाए। तो मैं यूपीएससी टाइम को ज़रूर बोलूँगी कि वो आपको वो प्रोवाइड कर दें। अब आता है कि जियोलॉजी फॉरेस्ट्री में डिफ़िकल्टी हो रही है पेपर 2 सेक्शन 1। येस 280 इज़ अ गुड स्कोर। ओके, जियोलॉजी के लिए देखिए आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कोचिंग बट मैंने प्लैनेट जियोलॉजी लिया था, ओके, और वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लिया था। वो इसीलिए था कि मुझे एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए था और 2 ऑप्शनल में से अगर एक ऑप्शनल बहुत अच्छा आपका प्रिपेयर्ड हो ना, तो आपके बहुत अच्छे स्कोर होंगे। वो मुझे पहले से क्लियर था। तो मुझे था कि जियोलॉजी ही मुझे अच्छे से करना है क्योंकि वो काफ़ी टेक्निकल हो जाता है ना? तो मैंने जियोलॉजी को ही 3-4 महीने पढ़ा था। तो पूरे टाइम मैंने 8-9 8 घंटे से कभी 10 घंटे क्लासेस देखी थी। उसके बाद अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स पढ़े थे। तो आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो जियोलॉजी तो है ही ऐसा कि उसमें बहुत सारी टर्म्स जो कि याद करनी पड़ती है। बट अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स लीजिए और उन्हें बस रट लीजिए। आपको जियोलॉजी में अगर कई बार कॉन्सेप्ट ना भी समझ में आए ना, जो नोट्स में लिखा है वैसा का वैसा लिख देना और अच्छे से डायग्राम्स बनाना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। टेक्निकल टर्म्स कई बार हेल्प कर जाती है। कोचिंग का ओके, अगर आपको कोचिंग का मैं बताऊँ तो मैंने 26 से जो खुद से स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना, तब से लेके 2024 तक एज़ सच कोई कोचिंग नहीं ली है, ओके? बीच में मॉड्यूल्स होते हैं, अब तो ऑनलाइन हर चीज़ होती है, तो जैसे शिवन सर का साइंस एंड टेक कोर्स हो गया और वो एनवायरनमेंट के साथ कंबाइंड आया था, वो लिया था। बीच में 2021 या 22 में शायद एक शब्बीर सर की एक ज्योग्राफी एनरिचमेंट कोर्स लिया था क्योंकि तब मैं ज्योग्राफी को अपना एज़ अ ऑप्शनल मान रही थी। और जो अल्टीमेटली मैंने नहीं दिया, फॉरेस्ट एग्ज़ाम दिया। तो इस तरह के कुछ लिए थे कोचिंग्स फिर मैंने फॉरेस्ट की मेंस के लिए प्रीलिम्स के बाद ली थी प्लैनेट जियोलॉजी, बस वही कोचिंग ली थी। ओके, 10th इज़ वे टू अर्ली 10th के बाद से आपको अगर आर्ट्स करना है तो ऑफ़ कोर्स आप ले सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो। और अगर आपको 10th तो बहुत ज़्यादा जल्दी है एक्चुअली यूपीएससी के लिए मत जाइए। आई वुड से कि आप अ अच्छे से कॉलेज तक कीजिए, कॉलेज तक आप यूपीएससी को बस ये सोचिए कि आप आगे कभी यूपीएससी देंगे, ओके? डोंट फॉल इंटो दिस ट्रैप, ओके? जल्दी पढ़ना, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है ये, 10th भी नहीं, 12th भी नहीं और आपकी डिग्री, ग्रेजुएशन भी नहीं, ओके? तब तक आपको बहुत सीरियसली हाँ, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरा जर्नी का कि अगर ये वाला यूपीएससी नहीं हुआ था, तो आई हैड नथिंग टू फॉल बैक अपॉन, ओके? प्लान बी आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यूपीएससी देना चाह रहे हो, तो आपको पास अगर कोई टेक्निकल डिग्री है फॉर एग्ज़ाम्पल या कोई ऐसा स्किल सेट है जो आप फिर अगर आपका यूपीएससी मान लीजिए अनफॉर्च्युनेटली नहीं होता है, तो आप वो बहुत आराम से कंटिन्यू कर पाएँ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा था, तो इट वाज़ वेरी, वेरी क्रिटिकल। तो 10th के बाद जो अच्छा आपको सब्जेक्ट लगे, जिस स्ट्रीम में जाना हो वो करिए, 12th भी उसी से करिए और ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। यूपीएससी को पढ़ना स्टार्ट मत कीजिए, ये एज नहीं है। करना है तो इवन लास्ट ईयर से करना स्टार्ट कीजिए, ओके? मेरा ये 4th अटेम्प्ट था। इंटरनल सिक्योरिटी अ, एक्चुअली इंटरनल सिक्योरिटी एक मेरे पास एक जब मैंने थोड़ा टाइम था, जब मैंने डिसाइड नहीं किया था प्रीलिम्स के बाद कि मुझे सीएसई में ही लिखना है या फॉरेस्ट का, उसके बीच में मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, वो छोटा-सा ही टॉपिक है। तो एक विज़न की बुकलेट थी आई थिंक और शिवन सर के कुछ नोट्स मेरे पास थे। ओके, तो 2 मैंने उनका वो मॉड्यूल तो नहीं लिया था, मेरे पास मैंने बुक स्टोर से ले लिए थे वो वहाँ पे। तो उनसे स्टार्ट किया था बट अल्टीमेटली मैं नहीं कर पाई थी कंप्लीट क्योंकि फिर मैंने सोच लिया था कि नहीं मैं फॉरेस्ट मेंस ही लिखूँगी। तो सीएसई मेंस का एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है।
ओके, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला था पहले मेंस लिखने का और बाद में भी आई डिसाइडेड कि मुझे फॉरेस्ट मेंस अच्छे से पढ़ना है। नाउ ओके, कोई अगर नया क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, मेंस में सिविल सर्विस मेंस के लिए आपके पास दूसरे टॉपर्स को आप डेफिनिटली फॉलो कीजिए। आई एम मोर ऑफ अ प्रीलिम्स एक्सपर्ट क्योंकि वो मेरे पास अ एक सीसेट की वजह से रुक रहा था, अदरवाइज़ आई ऑलवेज़ स्कोर्ड डिसेंट मार्क्स इन जीएस प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स और इंटरव्यू इन 2 के बारे में मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, वो आप अच्छे से सुनिए कि प्रीलिम्स और इंटरव्यू ये दोनों ही एक्चुअली अब इट्स अ दे आर गेम ऑफ नर्व्स एक्चुअली, ओके, मोर देन गेम ऑफ नॉलेज। क्योंकि इंटरव्यू में भी ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, ओके, बट आई गॉट डिसेंट मार्क्स 198 मार्क्स हैं इंटरव्यू में। तो एक मैंने बुक पढ़ी थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो आप जो बिलीव करेंगे वही होगा। और प्रीलिम्स में भी इस बार ये था कि नहीं अब ये अगर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है तो मैं बहुत अच्छे से दूँगी। वैसे इंटरव्यू में मैं बहुत ही स्ट्रेस फ्री थी, एकदम नॉर्मल थी। तो प्रीलिम्स और इंटरव्यू को आप इस तरह से लीजिए, अभी ये वाला प्रीलिम्स भी आपने देखा होगा, वो तो कुछ लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा है। तो उसमें शांत रहना और अगर आपने सोचा है एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पे यू शुड बी काम, ओके? और इस तरह से आपको करना पड़ेगा। नाउ हाउ टू रीड एनसीईआरटी, ठीक। सो एक तो एनसीईआरटी के आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। एनसीईआरटी आपको कई बार पढ़नी पड़ेगी कुछ चीज़ों की, जैसे कि ज्योग्राफी है। 2024 में अगर आप देखोगे तो सारा क्वेश्चन पेपर का सबसे ज़्यादा वेटेज मुझे जो लगा था वो काफ़ी सारा ज्योग्राफी का था और उसमें भी ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ज्योग्राफी एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी थी। वैसा ही इकोनॉमी में कई बार हमको कई स्टेप आगे जाना होता है नॉलेज बिल्ड करने के लिए, बट उसका बेसिक जो 11th एनसीईआरटी होती है ना, वो काफ़ी अच्छी होती है। तो एनसीईआरटीज़ पढ़ना ही रहेगा। उसी तरह से आर्ट एंड कल्चर वगैरह के लिए सॉरी आर्ट एंड एंशिएंट हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर जो होता है, ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी आप जो पढ़ना चाहें वो पढ़ते। तो एनसीईआरटीज़ को पढ़िए, कई बार पढ़िए, नोट्स मत बनाइए उनका, वो आपका बेसिक बिल्डअप करेंगे। ओके, सो जीएस 3 एज़ आई एम सेइंग दैट मैंने सिविल सर्विस मेंस का मुझे मार्क्स का भी कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मैंने उसका इस बार भी जो लिखा था वो सिर्फ़ प्रैक्टिस के लिए लिखा था कि फॉरेस्ट मेंस मुझे देना है तो मुझे लिखना आना चाहिए। अ, पेन जो होता है या ऐसे सिली क्वेश्चन इट्स फाइन, इट्स नॉट अ सिली क्वेश्चन एक्चुअली इट्स फाइन। मुझे भी बहुत डाउट था। पेन का जो था कौन-सा पेन यूज़ किया था? पेंटोनिक। ओके, मैं भी भूल गई थी। इट्स पेंटोनिक, ओके। ओके। हाँ, टाइम टेबल तो ज़रूरी है, टाइम टेबल आपको प्लान करना आपका शेड्यूल प्लान करना और आगे आप पूरे महीने क्या करेंगे, पूरे वीक क्या करेंगे और फेल होना भी उतना ही कॉमन है, ओके। हार्डली कोई टाइम टेबल रहा होगा जो मैंने पूरा फ़ॉलो कर लिया, ठीक है? तो टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, पूरा फ़ॉलो नहीं भी होता है तो नेवर मतलब आपको खुद को ऐसा इतना परेशान नहीं करना है। फ़ॉलो होता है जितना उतना करिए, एटलीस्ट आपके पास एक टाइमलाइन रहता है कि हाँ, इतने सब्जेक्ट्स इतना कवर करना है, प्रीलिम्स आएगी तो उससे पहले कितने टाइम तक आपको मेंस कवर करना है। तो टाइम टेबल ज़रूरी है, फॉलो नहीं भी होता है तो इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट्स जो थे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का बेसिक बीएससी किया है मैंने, ओके, इंदौर से। ओके, आंसर राइटिंग में कंटेंट और प्रेज़ेंटेशन में क्या मैटर करता है? देखिए, फॉरेस्ट मेंस जो होता है ना, उसमें दोनों मैटर करते हैं। सिविल सर्विस का तो पता नहीं, पर फॉरेस्ट में एक्चुअली प्रेज़ेंटेशन भी उतना ही मैटर करता है, ये मैं बोल सकती हूँ क्योंकि फॉरेस्ट्री में मैंने आई डेलिबरेटली यूज़्ड कलर्ड पेन्स और पिंक कलर के पेन्स यूज़ किए थे और ब्लू कलर के पेन्स यूज़ किए थे। बहुत अच्छे से ट्रीज़ बनाए थे, डायग्राम्स बनाए थे। तो अच्छा प्रेज़ेंटेशन और कंटेंट तो ऑब्वियसली अगर कंटेंट के बिना आप कुछ करेंगे तो नहीं होगा, बट फॉरेस्ट मेंस में तो प्रेज़ेंटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके। देखिए, बुक लिस्ट तो आपके पास हर जगह होंगी। इनफैक्ट अगर आप न्यूट्रली मैं बोल रही हूँ कि मैंने डॉक्टर शिवन को कई चीज़ों में ब्लाइंडली फ़ॉलो किया था, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को। तो और उनको ट्रेंड्स भी अच्छे से वो एनालाइज़ करते हैं, तो आप बुक लिस्ट तो वहाँ से देखिए। अभी इतना डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगी, पर डेटाज़ का ये होता है कि अ, मेरे पास कई सारे वन पेजर्स थे, जो आपको लास्ट में याद रहते हैं। अदरवाइज़ जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री भी होता है ना, तो उसमें
कई बार हम भूल जाते हैं कि कौन-सी बुक किसने लिखी थी या फिर क्या क्रोनोलॉजी है, कौन से किंगडम्स कब आए थे। तो आप वन पेजर्स रखिए, ओके? जिसमें सारे फॉर एग्ज़ाम्पल आर्किटेक्चर्स आ जाते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं और बुक्स होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, वो उसमें हो जाएगा, इकोनॉमी का डेटा हो जाता है। तो आप खुद से वन पेजर्स बनाइए ताकि वो आप इवन विजुअली वो आपको याद रहे कि हाँ, हाँ, ये मैंने पढ़ा था, तो वैसे याद होता है वो। ओके, आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट्स अपने वर्ड्स में नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस से होगा। अगर आपने अभी ही शुरू किया है, तो इट्स फाइन कि आप बहुत बुरा भी लिखेंगे, इट्स जस्ट कि आप लिखते रहिए, ओके? अभी तो कोई मीन्स नहीं है, राइट? अभी हम इसी प्रीलिम्स को जस्ट हमने क्लियर किया है, तो अगर आपने ये प्रीलिम्स नहीं दिया है तो और अगला देने वाले हैं, तो यू हैव इनफ टाइम, ओके? कीप राइटिंग। सबसे बड़ा ये होगा कि आप डरिए मत। जैसे मैंने अ, यही किया था कि मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी आंसर लिखने में, तो इस वजह से शायद सिविल सर्विस मेंस का भी मैं कभी बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं कर पाई या फिर कवर नहीं कर पाई थी। तो आप ज़रूर लिखते रहिए, ओके? इट्स ओके अगर आप अभी नहीं लिख पा रहे, आप लिख पाएँगे अल्टीमेटली, बस छोड़िएगा मत लिखना। ओके, इंटरव्यू के लिए डेप्थ का एनालिसिस, फाइन। सो देखिए, एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा डेस्क काफ़ी खाली-खाली सा था, उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। एक ही जगह मैं मेरी फैमिली रही है, कोई अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं था, कोई अलग स्टेट नहीं था और कोई भारी बहुत ज़्यादा जॉब नहीं की थी मैंने। और जॉब एक्सपीरियंस कुछ बहुत बड़ा नहीं था। कोई ऐसा इंजीनियरिंग नहीं की थी कि जिसका कोई प्रोजेक्ट मैंने किया हो, उसको मेंशन किया, उसको ज़्यादा करना है। हॉबीज़ बहुत ज़्यादा नहीं थे, एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। छोटी जगहों में इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो डेफ मेरा बहुत ही छोटा-सा ही ऐसे ही था नॉर्मल सा, तो उसको ज़्यादा कवर करना नहीं पड़ा और मुझे पता था क्या आएगा। एक राजगढ़ था, वो आ सकता था या फिर हॉबीज़ में भी योगा था, योग आसन थे और वो मैं करती ही हूँ, तो वो उसको कर लिया था मैंने। तो डेफ इसलिए मेरा ईज़ी था, बट मैं ये कहूँगी कि जब आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच जाते हैं, तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जो आपको डेफ एनालिसिस खुद से करते हैं। एक हमारे सीनियर हैं रविकांत मीना सर, तो उन्होंने भी सबकी इंडिविजुअली डेफ एनालिसिस किए थे, आप उनके चैनल से जुड़ जाते हैं, वो कर देते हैं, आप स्टेज तक पहुँचोगे तो आपकी सब मदद करते हैं। ओके। हाँ, मैं आप एकदम से दिमाग में सोचूँगी आपको याद नहीं आएगा। इवन इतने सालों तक पॉलिटी पढ़ने के बाद भी मुझे कई सारी चीज़ें याद नहीं आती है। सो वही है कि जस्ट एग्ज़ाम से पहले अगर प्रीलिम्स है, उससे पहले तो आपको याद आ जाएगा, ओके? और अभी अगर आप सोचोगे और नहीं भी याद आ रहा है तो इट्स फाइन। जीएस मेन्स को डिफ़िकल्ट क्या बनाता है? द थिंग इज़ इट्स वेरी डाइवर्स, ओके? आपको ऐसे लिखना होता है, आपको ऑप्शनल लिखना होता है, फिर आपके पास एक ही जीएस 3 में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, रिविज़न काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए जीएस एक्चुअली डिफ़िकल्ट है सिविल सर्विस मेंस का और उसके लिए आप डेफ़िनिटली बहुत ही पर्टिकुलर कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है इस साल और वो एक्टिवली हेल्प करना चाह रहे हैं, आप उनसे ज़रूर उनकी स्ट्रैटेजीज़ को ध्यान में दीजिए। Now without newspaper, okay. So the newspaper question. न्यूज़पेपर अब ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बोलते हैं कि न्यूज़पेपर आपको नहीं पढ़ना चाहिए। इट्स ओके अगर आप न्यूज़पेपर ना भी पढ़ें तो। बट मेरा ओपिनियन ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको चीज़ें ऑर्गेनिकली याद रहती हैं और ये मैं सबको बोलती हूँ। जब मैंने इस बार क्या हुआ था जब मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली परेशान हो चुकी थी यूपीएससी से तो मेरा पूरा मन था कि अब मुझे और आगे नहीं देना। तो मैंने हर चीज़ ही ऑलमोस्ट स्टॉप कर दी थी, उसमें न्यूज़पेपर भी उसका पार्ट था। बट मेरे इंटरव्यू के टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कई जगह ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है अभी, जो कि मुझे 2016, 17, 18 से लेके 21, 22, 23 सब तक का याद था कि क्या हो रहा है। 22, 24 का ही एक साल था जब मुझे इतने अच्छे से याद नहीं आ रहा था कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो आप मैगज़ीन पढ़ लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए पढ़ना। उसको स्पेसिफिक पढ़ना कि इसका कौन-सा क्वेश्चन मेंस के लिए पढ़ना है, कौन-सा प्रीलिम्स। उसके अलावा भी न्यूज़पेपर आप नोट्स बनाने के पर्सपेक्टिव से मत पढ़िए। यू शुड नॉट मेक नोट्स आउट ऑफ द न्यूज़पेपर। आप उसको पढ़िए जस्ट गो थ्रू द इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपको ओवरऑल टाइम के साथ समझ में आ जाएँगी, ओके? तो न्यूज़पेपर पढ़िए, ओके? सिर्फ़ क्यूरियोसिटी के साथ, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। इंटरव्यू फॉरेस्ट का इंटरव्यू में लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है, तो मेरी इंग्लिश ही लैंग्वेज थी। पीवाईक्यू कैसे एनालाइज़ करना चाहिए? सो पीवाईक्यू पीवाईक्यू को आई वुड से कि
लास्ट के 2-3 साल तो आप ऐसे भी करेंगे कि अब ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कई बार नेग्लेक्टेड होते हैं पर वो पूछे जाने लगते हैं। और अदरवाइज़ तो जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, गो थीम वाइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री है, बुद्धिज़्म उठा लीजिए, उसमें आर्किटेक्चर पूछ रहे हैं कि लिटरेचर पूछ रहे हैं, क्या पूछा है, उससे कितना डेप्थ में पूछा है और उस हिसाब से आप रिवाइज़ कर रिकॉल कीजिए कि आपको याद आ रहा है, आपका प्रिपरेशन सही है कि नहीं। तो इस तरह से आप पीवाईक्यू को एनालाइज़ करते हैं। यूपीएससी ऐसे में फिलॉसॉफिकल टॉपिक चूज़ करना। सी दिस इज़ वेयर आई से कि यू शुड ऑलवेज़ डिसाइड फॉर योरसेल्फ, ओके? और ना ही किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना है। तो इसका मतलब यही है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी स्ट्रेंथ जीएस टॉपिक से ज़्यादा फिलॉसॉफिकल टॉपिक्स होती है, तो मैं उनको ज़्यादा अच्छे से लिखती हूँ, मुझे उनमें लिखना अच्छा लगता है। कुछ होते हैं जिनको जीएस का नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है, वो जीएस के ही टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से लिख लेते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स पॉइंट्स ले आते हैं। तो इट शुड ऑलवेज़ बी कि आप किसमें ज़्यादा अच्छे कर पाएँगे। ओके, सो ऑप्शनल सब्जेक्ट ने ही एक्चुअली मुझे जो सिंगल डिजिट रैंक मिली है, वो आई थिंक जियोलॉजी ऑप्शनल का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है उसमें, ठीक है? रैंक 9 आने में, क्योंकि 284 काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो डेफ़िनिटली काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, अगर आप प्रीलिम्स पहले से क्लियर करते आ रहे हैं, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे कि मेरा होता था कि मैंने लास्ट में आई थिंक 1 महीना 50 दिन, इतना आप सिर्फ़ प्रीलिम्स के लिए दोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है? ओके, कितनी देर पढ़ने का? तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास कोई और बैकअप नहीं था, सिर्फ़ यूपीएससी ही मैंने की है। तो मैं आपके और क्वेश्चंस देख लेती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने बस यूपीएससी ही की है, तो उसमें और कोई चीज़ ज़्यादा करी नहीं है। तो पढ़ने के अलावा बहुत ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं था। तो कितनी देर पढ़ने का तो है नहीं, जितना टाइम मेरे पास था वो सिर्फ़ पढ़ने में ही मैंने ध्यान दिया है, ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो अगर मैं एक-एक करके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबको अब आपके क्वेश्चंस मैंने एड्रेस कर दिए हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की अगर हम बात करें एक-एक करके, तो प्रीलिम्स में ये होता है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस की वैसे अलग तैयारी नहीं होती है। मेंस आपको बहुत थॉरोली पढ़ना रहेगा। उसी के साथ आप उसी के साथ आप प्रीलिम्स के लिए क्लैरिटी आपको मिलेगी। कुछ क्वेश्चंस पहले ऐसा हो सकता था कि आप सिर्फ़ प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ें और मेंस के लिए अलग पढ़ें। बट मेंस आपको एक बहुत होलिस्टिक नॉलेज देगा और जब प्रीलिम्स आती है तो सिर्फ़ उसके लास्ट के 1 डेढ़ महीने आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट्स वग़ैरह पढ़ेंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस साथ में पढ़ेंगे। अब मेंस के लिए क्या होता है कि आपने बेसिक एनसीईआरटी से आपका बेसिक कवर करा। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जो आपको पढ़ना होती है, जैसे कि लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम वग़ैरह आप पढ़ रहे हैं, तो उन बुक्स को आपने पढ़ लिया। बट जब आप मेंस लिखते हैं तो मैंने ये देखा है कि आपको बहुत ही प्रिसाइज़ आपके पास नोट्स होने चाहिए। हर कीवर्ड का आपके पास नोट्स होने चाहिए। जैसे कि इकोनॉमी का आप देखेंगे सिलेबस, तो उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ठीक है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, और उसमें हंगर, पॉवर्टी ये सब भी है, फिर एनवायरनमेंट आता है, साइंस एंड टेक आता है। तो उसमें हर टॉपिक से अगर कभी भी क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाएगा, तो आपके पास उसको स्टार्ट करने के लिए बेसिक डेटा होने चाहिए। आप इकोनॉमिक सर्वे से कुछ कोट कर पाएँ वो होना चाहिए। उसके पास आपके पास राइट अप होना चाहिए। तो ये सब नोट्स बाद में आते हैं। आप अपनी बेसिक पढ़ाई कर लीजिए एनसीईआरटी से और वो एनसीईआरटी ही आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है? फिर आपने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी हैं।
और नोट्स मेंस के लिए इस तरह से प्रिपेयर कर लिए हैं। हर एक टॉपिक का मेंस आपके पास नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए। फिर आप ये हो गया, उसके बाद आप प्रीलिम्स में शिफ्ट कर गए। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक फैक्ट्स आपको याद रखने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए अब जो होता है इंटरनेशनल रिलेशंस जो होता है वो मैप के साथ आता है, ठीक है? आपको उसमें मैपिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। तो उसके लिए जस्ट प्रीलिम्स से पहले कई चैनल्स पर मैप की वो आती है मैपिंग के वीडियोज़ आते हैं। तो आप उन्हें देखिए मैंने क्या किया था प्रॉपर 2-3 पेजेज़ लिए थे और हर एक जो न्यूज़ आई थी जो प्लेसेस इन न्यूज़ करके आता है, तो एक अफ्रीका का मैप बना लिया, उसमें उनको मार्क करा है और लिखा है। तो इस तरह से वन पेजर्स से आप मैपिंग कर सकते हैं और ओवरऑल आपके प्रिपरेशन में आपको एटलस तो देखना ही होता है, ठीक है? तो ये प्रीलिम्स का था, ये मेंस का आपने करा और अगर इसमें मैं फॉरेस्ट मेंस की स्पेसिफिकली बोलूँ, तो फॉरेस्ट मेंस में सबसे ज़्यादा ध्यान, सबसे ज़्यादा 90% जो आपका अ, टाइम जाता है, वो ऑप्शनल में जाता है, ठीक है? वो आपको ऑप्शनल प्रिपेयर करना होता है उसमें, जैसे जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री था मेरा, तो ज़्यादातर टाइम वहीं गया। लास्ट में करते-करते क्योंकि एक जनरल नॉलेज का पेपर होता है, एक जनरल इंग्लिश का पेपर होता है। उसका वेटेज मार्क्स में इतना ज़्यादा नहीं होता, उसमें मार्क्स भी आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपके साथ सिविल सर्विस वाले भी कहीं न कहीं लिख रहे होते हैं। तो उसमें डिफरेंस लाना इतना इसमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा। पर अब जब आप ऑप्शनल में ज़्यादा मेहनत करोगे और उसमें ज़्यादा टेक्निकल रहोगे, तो उसमें मार्क्स का डिफरेंस आता है जो इस बार जियोलॉजी में दिखा है। तो एग्ज़ाम जैसे कि फॉरेस्ट का एग्ज़ाम मेंस इसीलिए अलग है, सिविल का अलग है, तो जब आप एग्ज़ाम को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एग्ज़ाम क्या चाह रहा है? फिर आता है पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी जो होती है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट या तो आप खुद से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें कि यही होता है कि आप डेफ प्रिपेयर करेंगे आपका, फिर जो बेसिक जैसे कि फॉरेस्ट का एग्ज़ाम है तो आप उसमें फॉरेस्ट रिलेटेड बेसिक फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड न्यूज़ पढ़ेंगे। तो ये सब अगर आप खुद से कर सकते हैं तो करिए, वरना आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हमेशा ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने इस बार किया था। तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको कहीं न कहीं स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करवा देते हैं, तो वो आप करिए और इंटरव्यू के लिए यही होता है कि उस दिन जिस दिन आपका इंटरव्यू है, उस दिन आप कै किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर मैंने जो बोर्ड्स देखे हैं, वो काफ़ी कॉर्डियल ही होते हैं, सुना है, तो वो काफ़ी कॉर्डियल होते हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं। मेरे साथ भी यही एक्सपीरियंस रहा था, ठीक है? और उसी तरह से यस। सो इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन्स हैं मैं अब उनको एड्रेस करती हूँ कि मॉक इंटरव्यूज़ जो थे मैंने ओवरऑल 3 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। 2 मैंने संकल्प आईएएस में दिए थे, संकल्प जो फाउंडेशन है वहाँ दिए थे और एक वाजीराम इंटरव्यू में दिया था। तो इस तरह से 3 मॉक दिए थे और एक वन टू वन सेशन था। एक ऑनलाइन मॉक दिया था जो जब मैं घर पर ही थी, दिल्ली नहीं गई थी उससे पहले। मॉक इंटरव्यूज़ का रोल ये होता है कि ये आपको वो कंडीशंस से आपको उन कंडीशंस का पता चलता है कि आप किस तरह से परफ़ॉर्म कर पाएँगे। जैसे कि मेरे कुछ जो मॉक थे, फॉर एग्ज़ाम्पल बाजीराम वाला था, वो उतना अच्छा नहीं हुआ था जितना मुझे मेरा अल्टीमेटली फाइनल हुआ। पर उससे ये समझ में आ जाता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको और प्रिपेयर करनी चाहिए, आप किस जगह नर्वस हो जाते हैं। मेरा जैसे बोलने का टोन था वो मैं शुरू में तो अच्छा बोलती थी, फिर काफ़ी धीरे हो जाती, वो भी मुझे वहीं पता चला कि आपको टोन थोड़ा आपका उसमें यूनिफ़ॉर्मिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से मॉक इंटरव्यूज़ हेल्प करते हैं। बट उस उनकी सारे फीडबैक को आपको ऐसा बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना है। जो आपको लगे कि हाँ, ये मुझे हेल्प करेगा, वो लेना चाहिए। और आंसर्स में रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स की अगर हम बात करें, तो मेंस में तो उतना चांस नहीं होता है देखिए। इंटरव्यू में ज़रूर आपके रियल लाइफ से ज़रूर आगे आती हैं चीज़ें क्योंकि वो समझ जाते हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसका वो क्रेडिबल है कि नहीं। तो इसी वजह से था, मैं इसीलिए थोड़ा रिलैक्स थी कि शायद मैं बिल्कुल उन पर भरोसा करके गई थी कि जो मैं बोलूँगी वो समझ जाएँगे। फॉरेस्ट में एनवायरनमेंट में मुझे नेचुरल इंटरेस्ट है। तो उस तरह से था, स्कोर भी वैसा ही हुआ। एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट्री में ग्राउंड लेवल नॉलेज जो होता है, तो बेसिक जो नॉलेज होता है, एक तो आपका एनवायरनमेंट का नॉलेज काफ़ी इम्पोर्टेंट जो आप एनवायरनमेंट जीएस के लिए पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, मैंने शंकर आईएएस पढ़ी थी जैसे, तो वहाँ से वो नॉलेज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको नेशनल पार्क्स के नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ के बारे में बताइए।
तो मैंने उसमें काफ़ी सारे न नाम लिए थे, 7-8 वाइल्ड लाइफ़ नाम बताए थे उनके। फिर उन्होंने पूछा कि ये नेशनल ये नॉर्थ ईस्ट की वाइल्ड लाइफ़ से कैसे अलग है? तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ़ भी मुझे एक तो नेशनल पार्क से याद थी और जीएस के टाइम पे हम जो सारे एनिमल्स के नाम पढ़ते हैं, वहाँ से याद था। तो इस तरह प्रिपरेशन आपको सारी हेल्प करती है और फॉरेस्ट्री एज़ एन ऑप्शनल वो मैंने पूरी तरीके से नोट्स ही पढ़े थे। आई थिंक अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स मैंने पूरी तरीके से पढ़े थे। तो वो बस वही सोर्स था मेरा। मॉक इंटरव्यू के वीडियोज़ देखिए संकल्प तो रिकॉर्ड नहीं करता है, वाजीराम करते हैं तो इंस्टीट्यूट अगर रिलीज़ करेंगे तो वो ही एक मॉक इंटरव्यू रहेगा और एक धी अकेडमी पे जो मैंने ऑनलाइन वन टू वन मॉक बोला था, जो उनका फ्री इनिशिएटिव था, वहाँ दिया था। तो शायद अगर वो रिलीज़ करें तो ठीक है। ओके। सो देन आईएफओएस जो इंटरव्यू था उसमें इकोलॉजिकल और पॉलिसी बेस्ड जो क्वेश्चन्स थे। तो उनका मेरा जो एक वन स्टॉप सोर्स था, वो था एवोल्यूशन आईएएस का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो था। वहाँ पे हमें अभिषेक सर ने जो नोट्स बनवाए थे, वो थे और पॉलिसी और लॉ जो होता है, वो आप फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी मेंस में पढ़ते हैं। तो वो नोट्स और कुछ अपडेशन जो मुझे मेरे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के नोट्स में मिला था, उन दोनों से मैंने पढ़ा था और इकोलॉजी एक्चुअली यही अच्छा था कि जो फॉरेस्ट्री होता है, उसमें इकोलॉजिकल और एनवायरनमेंट का जो उसका बेसिक होता है, वो आप जीएस मेंस के लिए भी पढ़ते हैं और वो आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं। तो वहाँ से आपका ऑलरेडी कवर्ड रहेगा। अगर आप फॉरेस्ट मेंस देना चाहते हैं, तो वो आप सिविल सर्विस के बाद कई सारे टॉपर्स को मैंने देखा है, उन्होंने कवर किया है और सिविल सर्विस मेंस देने के बाद भी फॉरेस्ट मेंस प्रिपेयर करके वो उन्होंने दिया है, क्लियर किया है, तो वो हो सकता है। ओके। इकोनॉमी के रिसोर्सेज़, ओके। देखिए इकोनॉमी क्या होता है वो उससे मुझे इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था स्टार्टिंग में क्योंकि मेरा वैसे साइंस बैकग्राउंड था और मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगता था। पर इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे शुरू में समझ में नहीं आता था। तो इकोनॉमी के लिए मैंने सारे ब्रुनल के जो वीडियोज़ थे, वो देख लिए थे। तो जिस भी सब्जेक्ट में एक्चुअली जो आपको टफ लगता है ना, उसके पीछे पड़ जाइए। तो इकोनॉमी के मैंने ब्रुनल के सारे वीडियोज़ देखे, कुछ वीडियोज़ को कई बार देखा। उसकी जो 11th और 12th एनसीईआरटी है, जो 12th एनसीईआरटी स्पेशली हाँ, 11 नहीं 12th एनसीईआरटी जो है इकोनॉमी की वो काफ़ी अच्छे से पढ़ी। उसके बहुत एक वन लाइनर से भी आपके क्वेश्चन्स बन सकते हैं, जैसे कि एक बार लीगल टेंडर की डेफिनिशन आ गई थी, जो एनसीईआरटी में ही है। तो अ, वो वीडियोज़ देख लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और उसके बाद भी मेंस के लिए इकोनॉमी थोड़ी अलग होती है और प्रीलिम्स के लिए अलग होती है। प्रीलिम्स के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना होता है, उसके डेटाज़ भी लेने होते हैं और उसके काफ़ी माइक्रो कॉन्सेप्ट्स से आते हैं सवाल, तो वो आपको उनसे हो जाएँगे। उसके लिए अगेन मैंने मृणल के इस बार जो 4 पिलर्स थे, वो पढ़े थे, ठीक है? तो वो हो गए, वीडियोज़ हो गए और एनसीईआरटी हो गई, ये प्रीलिम्स के लिए होता है। मेंस के लिए आपको इकोनॉमी के बहुत ही माइन्यूट अ नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है? ये होता है। ओके, प्लानर्स हाँ, कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स और कुछ टॉपर्स जो होते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको प्लानर्स देंगे अगर आप उन्हें रिलीजियसली फ़ॉलो कर पाएँ, तो प्लानर आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आता है कि आपको हॉबीज़ और इंटरेस्ट जो होते हैं, उनको कैसे अच्छे से पूछें। मेरे मुझसे एक्चुअली हॉबीज़ से क्वेश्चन नहीं आया था। मेरा जो हॉबी थी वो योग आसन करना था और एक लोकल आर्ट होता है हमारा मांडना, उसको वो बनाने का था। बट मुझसे वो क्वेश्चन नहीं पूछे थे। बट ये होता है कि अगर आपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट जो हैं, वो आपके कुछ रियल हॉबीज़ ही लिखी हैं और तो अ वो आपको बताना वैसे भी ईज़ी होगा, बट आपको उनको प्रिपेयर करना ज़रूरी है, ठीक है? भले ही वो आपकी हॉबी हो, पर उसको आपको कई सारे अ अ, डाइवर्स व्यू पॉइंट से, पर्सपेक्टिव से आपको उसको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा आपको हॉबी को, तो आप अपने आप कॉन्फिडेंटली आपको बता पाएँगे। ओके।
कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आप मेंस के लिए बनाएँगे, ठीक है? प्रीलिम्स के लिए आप खुद से कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आई डोंट थिंक ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि आप प्रीलिम्स के लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने लग जाएँ, ठीक है? प्रीलिम्स के लिए ज़्यादातर आप करंट अफेयर्स के लिए तो आप करंट मैगज़ीन्स पढ़ेंगे, ठीक है? वो हो जाता है और अ, प्रीलिम्स के लिए देखिए मैंने प्रीलिम्स को ही ज़्यादा टाइम पढ़ा है, तो मैं बोलूँगी कि उनके लिए वन पेजर नोट्स ही नोट्स होते हैं, अदरवाइज़ आप बुक्स ही पढ़ते हैं, आप एनसीईआरटी जो पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं। उसके लिए आप नोट्स नहीं बनाए थे। जो जो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स की मैं बात कर रही हूँ, वो मेंस के होंगे। वन पेजर्स आप मेंस जब देंगे तब भी बनेंगे, आपके जब आप अल्टीमेटली कुछ पार्ट कवर कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको किस तरह के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है? ये है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो था मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा था। जैसे ही मैं गई थी तो आई वेंट विद अ वेरी स्माइलिंग फेस एंड आई वाज़ वेरी रिलैक्स्ड। शायद आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये फर्स्ट इंटरव्यू ही था, बट मुझे यही था कि अब क्या ही हो सकता है? नर्वस होने से तो कुछ नहीं होगा। तो मैं बहुत ही शांत उससे गई थी। आई वाज़ स्माइलिंग सो जैसे मैं एंटर करी इट वाज़ तो उन्हें भी अच्छा लगता है जब आप ऐसे रिलैक्स जाते हैं ना, तो उन्हें अच्छा लगता है। तो उन्होंने पूछा स्टार्ट किया कि राजगढ़ के बारे में बताइए। इस तरह से तो पूरा कुछ काफ़ी अच्छा रहा था। कुछ जहाँ पे आप अटक जाते हैं, जैसे कि मैम मुझसे पूछना चाह रही थी कि जो ट्राइबल एरियाज़ है, वहाँ पे एजुकेशन अभी भी क्यों डेवलप नहीं हो रही है? तो मैंने बोला कि मैम वो इकोनॉमिक कंडीशंस की वज़ह से शायद बच्चे ड्रॉप आउट ले लेते हैं इस तरह से। तो मैम ने बोला कि नहीं, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है फिर भी क्यों नहीं कर रहे? तो मैं वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रही थी, तो मैंने बोला सॉरी मैम मैं नहीं समझ मतलब मैं नहीं बता पा रही हूँ। तो मैम ने एक्सप्लेन किया जो रीज़न था, तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? इट्स नॉट कि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप फिर भी कुछ ना कुछ बोलते जाएँ, ब्लफ करते जाएँ। नहीं आ रहा है आराम से सॉरी बोलिए, वो जो बताए थे उनको आप आराम से सुनिए और जब मैं आ रही थी तो बोर्ड सेड गुड अंजलि और दे एप्रिशिएटेड साड़ी जो था सा इवन मैम ने बोला कि आपने साड़ी बहुत अच्छी पहनी है, एमपी की लग रही है, वो ट्राइबल उस पे प्रिंट थे। तो इस तरह से था तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। हाँ, अगर आप कॉलेज में ही हैं अभी, तो डेफ़िनेटली आप कॉलेज पर भी फ़ोकस कीजिए। कॉलेज लाइफ़ वापस नहीं आएगी आपकी, तो कॉलेज तो डेफ़िनेटली आप उस पे फ़ोकस कीजिए। यूपीएससी की प्रिपरेशन को आप कुछ टाइम कर सकते हैं। साइंस एंड टेक के लिए आपको क्या रिसोर्स फ़ॉलो करने चाहिए? तो साइंस एंड टेक कुछ बेसिक साइंस तो जैसे कि आपने जो 9th-10th वगैरह में पढ़ी होगी, तो उसकी बुक्स का अगर आप रैपिड रिविज़न कर लें, तो मेरा एक रैपिड रिविज़न का एक बहुत फ़ॉर्मूला होता था कि जब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो मैंने पूरी-पूरी बुक्स फटाफट रिवाइज़ कर देती थी। तो वैसा मैंने उसके लिए किया था। बट प्रॉपर साइंस एंड टेक आई थिंक मुझे जब क्लैरिटी आई कि हाँ, मुझे वाक़ई में साइंस और टेक्नोलॉजी यूपीएससी लेवल का आता है, वो आया था जब मैंने शिवन सर का साइंस एंड टेक कोर्स लिया था और उसके नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया था। तो वो मेरा सोर्स था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। नाउ मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में डिफरेंस अगर मैं बोलूँगी तो जैसे संकल्प का जो मेरा सेकंड इंटरव्यू था वो और मेरा फाइनल इंटरव्यू रफली सेम था। ठीक है? लेकिन कुछ लोगों का अलग भी व्यू होता है। कई बार जो असली इंटरव्यू होते हैं, उसमें ग्रिलिंग ज़्यादा हो जाती है। कुछ मेंबर्स जो होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं और वो जो कैंडिडेट है, उनने भी कुछ उस फ़ील्ड में किया होता है। ज़्यादातर जैसे कि फॉरेस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है, उसमें इंजीनियर्स बहुत सारे होते हैं, आईआईटी से होते हैं। तो वो कई बार उस पर क्वेश्चन्स काफ़ी सारे फ़ॉलो-अप क्वेश्चन्स हो जाते हैं। तो देखिए, इंटरव्यू का कोई सेट फ़ॉर्मूला नहीं है कि कौन-सा इंटरव्यू कैसा होगा। मेरा कुछ मॉक इंटरव्यू यूपीएससी इंटरव्यू जैसे ही थे। ओके। देखिए, कोचिंग के जो नोट्स होते हैं एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि आप कोचिंग के आपके नोट्स हो जाते हैं और फिर बुक्स हो जाती हैं और एनसीईआरटीज़ हो जाती हैं। तो ये एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जिन चीज़ों के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, उनके लिए बुक ही पढ़िए, ठीक है? जैसे कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, तो लक्ष्मीकांत पढ़िए। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप किसी कोचिंग के प्रीलिम्स के पॉलिटी नोट्स पढ़ें, ठीक है? तो उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़नी चाहिए। तो यू हैव टू डिसाइड कि किन जगह आपको बुक्स पढ़नी है, किन जगह कोचिंग के नोट्स आपको वैल्यू एडिशन की तरह काम कर सकते हैं। पीवाईक्यू यूपीएससी में थीम्स कैसे रिपीट होती हैं? देखिए, सिविल सर्विस में तो थीम रिपीट होती है, फॉरेस्ट सर्विस में तो पूरे क्वेश्चन्स ही रिपीट हो जाते हैं। तो मुझे फॉरेस्ट मेंस का क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस है,
तो मैं उसका बता सकती हूँ कि उसमें तो यही होता है कि इवन टॉपर्स जैसे कहते हैं कि आपको पूरे पीवाईक्यू इवन पिछले 20 साल के पीवाईक्यूज़ आपको देखने होते हैं और उनमें से मैंने क्या किया था, जैसे अपूर्व दीक्षित सर के मेरे नोट्स थे जियोलॉजी के, तो उसके साथ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में कई सारे जो टर्म के क्वेश्चन्स थे, जो पहले आए हुए थे, जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कि ये क्या है? तो मैंने उनके चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करा और उन्हें लिखा और उन्हें एज़ अ नोट्स ऐड करा। तो वहाँ तो क्योंकि पूरे क्वेश्चन्स ही कई बार रिपीट होते हैं, लगभग वही क्वेश्चन्स आते हैं बदल-बदल कर, 80% लगभग वही आता है। इस बार फॉरेस्ट्री सेकंड पेपर जो था वो थोड़ा-सा अलग था, वो एनालिटिकल था। पर पीवाईक्यूज़ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इवन सिविल सर्विस में थीम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम्पल्स आई थिंक सिविल सर्विस टॉपर्स आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएँगे। अ, मैंने यूपीएससी की कोचिंग तो एज़ सच जैसा मैंने बता दिया है जो कहाँ किस स्टेज पर ली थी, ज़्यादातर मैं घर पर ही रहकर पढ़ा है और ऑनलाइन जहाँ जो छोटे मॉड्यूल्स हेल्प कर पाएँ मेरे वो लिए थे। नाउ फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विस के आंसर राइटिंग में अगर मैं फ़र्क की बात करूँ तो सिविल सर्विस जो होती है, उसमें आपको आंसर राइटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें आप जो सिलेबस पढ़ते हैं और फिर जो क्वेश्चन्स आते हैं, वो कहीं न कहीं आपको अप्लाई करना होता है आपका माइंड आप हर बार ऐसा होता है कि आपको इंट्रोडक्शन के लिए कोई डेटा चाहिए होगा, आपको बॉडी लिखनी होगी, कंक्लूजन लिखना होगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है? हर बार कुछ आपको यूनिक लिखना होगा, वो दूसरों से अलग लिखना होता है। पर जो फॉरेस्ट इंटरव्यू होते हैं, उसमें आपको कई बार टेक्निकल चीज़ें लिखनी होती है और उसमें आंसर राइटिंग इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट मेंस में ऑप्शनल का ज़्यादा रोल है और ऑप्शनल जो होता है, वो काफ़ी इसके थोड़े टेक्निकल ही है और ज़्यादातर तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं या फिर जियोलॉजी है या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है। तो इसमें याद करना, उन कांसेप्ट्स को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सिर्फ़ एक टेस्ट लिखा था जियोलॉजी का। एक आईएफएस सिम्प्लिफाइड करके कुछ जो सीनियर्स हैं हमारे आईएफएस सीनियर्स उन्होंने ही उनका इनिशिएटिव था, उन्होंने टेस्ट लिए थे। तो उसमें आई थिंक 6 या 8 टेस्ट टेस्ट थे पूरे, पर मैंने सिर्फ़ जियोलॉजी का एक ही टेस्ट लिखा था और उससे मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैंने याद कर लिया तो मैं लिख पाऊँगी। तो अगेन इट कम्स बैक कि आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। मुझे ये था कि अगर मुझे चीज़ें याद रह गई तो मैं लिख पाऊँगी। टाइम मैनेजमेंट मैंने सिविल सर्विस मेंस लिखकर देखा था कि इसमें सिविल सर्विस मेंस लिखा ही मैंने इसलिए था कि मुझे इससे टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाए। तो अगेन आपको इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है इस ओवरऑल जर्नी में। वही यहाँ था, तो मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग इसमें नहीं की थी। ओके, एमपीपीएससी का देखिए मैंने एक बार 1 या 2 अटेम्प्ट की दिए थे और डेडिकेटेडली मैंने एमपीपीएससी प्रिपेयर नहीं किया था। एक बार जब थोड़ा-सा जैसे उसकी प्रीलिम्स आ गई थी, तो मैंने उसका पढ़ा था 2-4 दिन, तो उसका प्रोविज़नल प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया था और उसका मेंस भी लिखा था, बट वो आई थिंक जो मेंस लिखा था, वो मैंने जस्ट एक पर्सनल ट्रेजेडी के बाद लिखा था, तो मैंने उस पर फ़ोकस नहीं किया था। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एमपीपीएससी दैट्स योर पर्सनल कॉल आप प्रिपेयर कीजिए। ओके, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है टॉपर्स कॉपीज़ को। यस, टॉपर्स कॉपीज़ एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी डाउनलोडेड रखी हुई हैं और अब तक भी वो पीडीएफ हैं। टॉपर्स कॉपीज़ एक्चुअली बहुत अच्छा सोर्स होता है, ये समझने के लिए कि आपको कुछ टॉपिक्स कैसे करने हैं। टॉपर्स कॉपीज़ में आपको समझ में आ जाएगा, कई बार आपको वो टॉपिक मिल जाता है जो आपने अभी पढ़ा हो, तो उसको उन लोगों ने कैसे लिखा है इकोनॉमी में स्पेशली डेटास को किस तरह से कोट किया है, ठीक है? एथिक्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एथिक्स में केस स्टडीज़ को किस तरह से लिखना होता है, केस स्टडीज़ के कितने सारे अप्रोचेज़ हो सकते हैं। आप जो पढ़ते हैं और अल्टीमेटली आप क्या लिख पाते हैं, उसका डिफरेंस आपको टॉपर्स कॉपी से ज़रूर समझ में आता है। तो मैंने उनको एक डाउनलोड कर रखा था टॉपर्स कॉपीज़ को और उनको कई बार पढ़ती थी। जब भी मुझे समझ में नहीं आता कि किसी टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए, तो टॉपर्स कॉपीज़ हेल्प करती हैं। हाँ, सबसे अब नाउ द बेस्ट एडवाइस दैट आई वुड गिव इज़ कि आपको आपकी मिस्टेक्स से हर बार सीखने को मिलेगा। ओवरऑल यही है, मेरी मिस्टेक जो थी वो यही थी कि मैंने
सीसैट को इग्नोर कर दिया, ठीक है? अगर आप प्रीलिम्स में एक क्वालिफाइंग पेपर से रह जाते हैं, तो आप कैसे मेंस लिख पाएँगे? तो 2022 के बाद मुझे 2023 में भी मैं सीसैट से रह गई। तो 2 बार एक क्वालिफाइंग पेपर की वजह से मैं मेंस नहीं लिख पाई थी। तो आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो वीकनेसेस हैं, वो आपको रेशनली जज करना पड़ेगा और जो आपको लगता है कि नहीं ये कमी है, तो उसको सुधारिए और उसमें टाइम दीजिए। आई थिंक I've addressed all the questions now. Okay, I'm not getting any new questions. अब हाँ, मैं अभी तो होम टाउन में ही हूँ। आंसर पॉइंट वाइज़ ही लिखना ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि अ ये फ़ॉरेस्ट की जो मेन्स थी, उसमें जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है हमारा, तो उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स एक साथ ही आते हैं। जैसे सिविल सर्विस में अलग-अलग चीज़ के पेपर होते हैं, फ़ॉरेस्ट मेन्स में जीके के पेपर में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन्स होते हैं। तो मैंने ज़्यादातर क्योंकि अपना टाइम ऑप्शनल में दिया था, तो जीके के पेपर के लिए मेरे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा नया नहीं था। प्रीलिम्स के बाद क्योंकि मैंने ऑप्शनल ज़्यादा पढ़े थे फ़ॉरेस्ट के। तो उन क्वेश्चन्स के हर एक पार्ट को ब्रेक करिए और हर पार्ट के लिए अगर आप 4-4 5-5 टॉपिक्स पॉइंट्स लिख पाएँ बहुत छोटे-छोटे, तो वो आपके आंसर को काफ़ी बड़ा बना देंगे। तो उसके लिए किया था पॉइंट वाइज़ मैंने और डायग्राम्स तो फॉरेस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा बनाए थे, जियोलॉजी में भी। मतलब फॉरेस्ट की मेंस में तो डायग्राम्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अ, ओके यही था अगेन कितने घंटे पढ़ने का तो वही है कि जैसे मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं थी, मैंने पढ़ने के अलावा कभी कुछ नहीं किया और जस्ट प्रीलिम्स और जस्ट मेंस से पहले तो मैंने 18-19 घंटे जितने हो सकते थे, वो किया है क्योंकि मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था। ये मेरी तरफ से लास्ट अटेम्प्ट था, तो पढ़ाई के घंटे का कोई वो काउंट नहीं है। पढ़ाई के अलावा मैंने कभी कुछ नहीं किया। Okay, and timeline for 2028 so it's a long time actually तो इसके लिए आप बहुत ही अच्छे से प्लानर्स को फॉलो करिए, ठीक है? किसी अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से 3 साल एक काफ़ी लंबा टाइम है, तो आप उसमें अ, आप अपनी अच्छे से उसको प्लान कीजिए एक्चुअली इतनी जल्दी बता पाना वो नहीं हो पाएगा। हाँ, इंट्रोडक्शन जो होते हैं वो सब आप जब आप पूरी तरीके से अपना सिलेबस कवर करेंगे, आपके पास काफ़ी कंटेंट होगा तभी आंसर स्ट्रक्चर्ड होंगे, ओके? तो इसके लिए अभी चिंता मत कीजिए, आप पहले सिलेबस कवर करिए, अच्छे से कंटेंट को समझिए। बिना कंटेंट के आप कैसे आंसर लिख पाएँगे? तो आपको कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर करना है, तभी आप आंसर लिख पाएँगे, ठीक है? और करंट अफ़ेयर्स के लिए मेरा एक ही सोर्स था विज़न की मंथली मैगज़ीन्स और वो एक्चुअली अभी काफ़ी बल्की हो चुकी है, तो मुझे नया सोर्स नहीं पता है। बट मैंने विज़न की जो करंट मंथली मैगज़ीन्स होती है, वही पढ़ा था। स्टडी में आपको कंसिस्टेंसी तो बनाना ही होगा। ये है कि अगर आपने यूपीएससी को चुना है, तो आपको कंसिस्टेंसी लानी ही होगी। बिना कंसिस्टेंसी के आप ये एग्ज़ाम तो नहीं कर पाएँगे, अनलेस आप बहुत ज़्यादा जीनियस हैं, बहुत ज़्यादा जीनियस हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो आपको ये होगा कि क्योंकि क्या होता है ना कंसिस्टेंसी जब ब्रेक हो जाती है, तो आपको आपका रिविज़न प्लान सारा बिगड़ जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि कौन से सब्जेक्ट्स आप कर चुके हैं, कौन से आपको और करने हैं। तो कंसिस्टेंसी से ही आपको एक्चुअली खुद पर कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी प्रिपरेशन पर कॉन्फिडेंस आएगा, वरना आप हमेशा डाउट में रहेंगे, ठीक है? और इंदौर में मैंने कॉलेज किया था एक्चुअली इसलिए मैं इंदौर में थी। वो मेरी ग्रेजुएशन हुई थी वहाँ पे जयंत दिवाकर कॉलेज से। मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़ा अगर मैं बोलूँगी तो मेंटल हेल्थ
इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बिना आप इस एग्ज़ाम में इतने फेलियर्स आप फेस नहीं कर पाएँगे, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, ठीक है? कई बार आप प्रीलिम्स में रुक जाएँगे, तो कई बार आप इंटरव्यू की स्टेज पर जाकर रुकते हैं, तो अ, टू फेस सच चैलेंजेस आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। तो यू शुड ऑलवेज़ हैव समवन जिससे आप बात कर सकें। मेरे पास पूरी फैमिली का सपोर्ट था। इनफैक्ट हर दिन ही ऐसा लगता था कि शायद नहीं हो पा रहा है। तो मैं अपनी फैमिली से बात करती थी, मेरी मम्मी हमेशा मुझे मोटिवेट करके ही भेजती थी वापस। तो इस तरीके से मेंटल हेल्थ आपको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड और वैसे आप मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इस साल के जो दूसरे टॉपर्स हैं, आप उनके भी टॉपर्स टॉक जान देखिए, सुनिए और वो आपको और अच्छे से डिटेल में बता पाएँगे। ये एक मुझे लगता है कि मेरी तरफ से काफ़ी एक जनरल सा ही इंटरेक्शन हो पाया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, तो आप ज़रूर टॉपर्स को कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज़ के लिए फॉलो कीजिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल। डेट्स कैसे मेमोराइज़ करिए लास्ट क्वेश्चन है। सो अगेन आई सेड वन पेजेज़ ओके हर चीज़ के लिए जो स्पेसिफिक चीज़ आपको नहीं आ रही है उसके लिए आप अपनी वन पेजर रखिए, विजुअली भी आपको याद रहेगा और इस तरह से होगा। नहीं, मैं दिल्ली पहली बार इंटरव्यू देने गई थी, तो मैं दिल्ली से नहीं हूँ, ना मैं गई हूँ वहाँ कभी, मतलब इंटरव्यू के अलावा। जीएस 4 की नोट मेकिंग भी जो होती है वो अ जीएस 4 ओके। तो जीएस 4 के लिए मेरे पास नोट्स थे जब मैंने प्रीलिम्स से पहले जो बनाए थे। तो वो यही है कि आपको उसको अ, मैंने काफ़ी डाइवर्स एक्चुअली मेरे पास एग्ज़ाम्पल्स हो गए थे जीएस 4 के लिए। तो वो कभी न्यूज़पेपर से कुछ आ गया, कभी किसी कोचिंग का कुछ कोचिंग्स ने पूरे एथिक्स का जो निकाल रखा है तो उसमें वीडियोज़ देख लिए फटाफट, तो उससे निकाल लिए बट पूरा स्ट्रक्चर्ड नोट्स मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाई थी मैं। पॉलिटिकली सोर्स लक्ष्मीकांत होता है और उसके जो नोट्स होते हैं ज़्यादातर मैंने फिर या तो यही होता है आपके पास गूगल होता है, आप उसको गूगल करते हैं अलग-अलग नोट्स जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं उनके पास जो कंटेंट दिया होता है उससे आप लेकर क्यूरेट करके आपके नोट्स बनाते हैं। मेंस के लिए आपको नोट्स इसी तरह से बनाने होते हैं अनलेस आपके पास किसी कोचिंग के पूरे कंटेंट है आपके पास। ओके, देखिए आईएफएस के लिए वन टॉपिक की एक्स्ट्रा प्रिपरेशन टू क्रैक आईएफएस कट ऑफ जो होता है। तो आईएफएस का कट ऑफ एक्चुअली काफ़ी हमेशा सिविल सर्विसेज़ से ज़्यादा होता है। तो वो इतना सर्टेन नहीं होता। मैंने सिर्फ़ आईएफएस का फॉर्म नहीं भरा था इसीलिए सिविल सर्विस कम आईएफएस का ही था। तो इस बार जो क्लियर हो पाया है, वो हर बार जीएस में जैसे कट ऑफ तो सिविल सर्विस का होता ही है, पर फॉरेस्ट का ज़्यादा इसलिए हो पाया क्योंकि अ एक तो ज्योग्राफ़ी का जो वेटेज था वो भी काफ़ी सारा था और ज्योग्राफ़ी की मेरी कमांड अच्छी थी क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था और एक्यूरेसी इज़ समथिंग जो मेरी मास्टरी है वो है कि मैं एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है मेरी प्रीलिम्स में। तो मैं बहुत ज़्यादा अ, क्वेश्चन्स को मैंने अटेम्प्ट नहीं करती थी, तो कुछ ही गलत होते थे उसकी वज़ह से मार्क्स ज़्यादा आते थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई। कुछ लोग होते हैं जो इवन 100 अटेम्प्ट करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड कि आप आपका प्रिपरेशन कैसा है, आप क्या करते हैं, वो आपको मॉक जो टेस्ट देते हैं ना, आप उसको उसमें समझ में आते हैं। तो आप या तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ाइए, आपको बेसिक नॉलेज आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो कि मैंने कहा हमेशा कि बेसिक एनसीईआरटी, बेसिक नोट्स वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नोट्स आपको न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं मैंने बोला कि आपको नोट्स न्यूज़पेपर के नहीं बनाने हैं, आपको जो विज़न जैसे कि मंथली आप ये जो भी एक मैगज़ीन पढ़ते हैं ना, उसको ही मार्क करना है और न्यूज़पेपर को आपको क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ना है। घर से प्रिपरेशन कुछ अलग नहीं होता है। घर से आप यही होगा अगर आप घर पे रहते हैं, तो अगर आप लाइब्रेरी है अगर आपके पास, तो लाइब्रेरी जॉइन कर सकते हैं। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में यही किया था मेरे जहाँ मैं रही हूँ वहाँ से लाइब्रेरी थी। तो मैं दिन भर बस लाइब्रेरी में पढ़ती थी और उससे क्या होता है कि हमेशा घर पे उससे पहले मैंने घर पे पढ़ा है, तो घर पे ये होता है कि आपको डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। थोड़ी-सी चीज़ के लिए आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, कई बार घर पे लोग आ जाते हैं। तो यही था मैंने फिर उसका सॉल्यूशन यही निकाला था कि मैं लाइब्रेरी चली गई थी और आप घर पे रहकर बाकी सारा आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता रहेगा और आप लाइब्रेरी में आराम से पढ़ सकते हैं।
प्रीलिम्स के लिए इस बार मैंने सिमुलेटर्स दिए थे फोरम के। ओके, उसके अलावा तो मैंने हमेशा जो ज़ेरॉक्स होता है, वो मँगवा लेती थी मैं बुक स्टोर से और घर पे ही हमेशा प्रीलिम्स लगाई के लिए मॉक लगाए हैं मैंने। बस इस अटेम्प्ट में मैंने फोरम के जो सिमुलेटर्स होते हैं, वो भोपाल जाकर दिए थे। 3 टेस्ट दिए थे आई थिंक 4th में हीट वेव बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने नहीं दे पाई थी। तो जीएस और सीसैट दोनों एक ही दिन देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो 2 महीने से लेकर 2 महीने आप प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड आप दे सकते हैं, तो वो हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले आप ज़रूर मेंस कवर कीजिए और ऑप्शनल आपको कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो वी कैन एंड नाउ। अदर जो क्वेरीज़ हैं, वो आप ज़रूर दूसरे टॉपर्स को आप ज़रूर फॉलो करिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। So this is how we are ending. And thank you UPSC Time for inviting me. I hope this was a good session. So thank you UPSC Time and thank you everyone for showing up. Thank you.